जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is a demo lecture for the Arbitration and Conciliation Act of 1996. Okay, so let's start. देखो, the wider principle of ADR, which stands for Alternative Dispute Resolution, right? So ADR is Alternative Dispute Resolution. Now the first question we need to ask is, as an alternative to what? It's a mechanism for resolving your disputes, but it is an alternative to the ordinary court procedure. ठीक है? So याद रखना कि first of all, before we jump into the Arbitration and Conciliation Act, it is an alternative to the ordinary court procedure, because the courts have a high rate of pendency of cases, and also the court procedure is really long and complicated, so it takes a long time to resolve the disputes. That is why we need an alternative. So arbitration and conciliation are alternatives to the ordinary court procedure. Now याद रखना that ADR में there are not only two modes, arbitration and conciliation, there are also other modes. So first we need to see what are the different modes of ADR. ठीक है? So this topic is modes of ADR. ठीक है? Now there are, broadly speaking, four modes. ठीक है? The first one is arbitration, the second is conciliation, the third is mediation, and in this umbrella mediation के अंदर ही हमारा आता है लोक अदालत, ठीक है, and negotiations, ठीक है, and the last one is judicial settlement, right? So याद रखना, there are broadly four modes of ADR. One is arbitration, the second one is conciliation, the third one is mediation, and the fourth one is judicial settlement. ठीक है? Section 89 of CPC आप बताता है कि what are the different modes of ADR. ठीक है? Now याद रखना कि all these four, इसमें arbitration is the only adjudicatory process. It is the only adjudicatory process. All of the rest of the three, they are deemed as non-adjudicatory or negotiatory processes. Non-adjudicatory or negotiatory processes, right? So याद रखना, अब इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by an adjudicatory process and what do you mean by a non-adjudicatory process? देखो, an adjudicatory process में क्या होगा? There will be a procedure to decide the rights and liabilities of the parties, and at the end of that procedure a binding decision will be given. ठीक है? So in an adjudication क्या होता है? There is a procedure for determining the rights and liabilities of the parties, and at the end there will be a decision which is binding upon the parties. That's an adjudicatory process. ठीक है? लेकिन नॉन एडजुडिकेटरी या नेगोशिएटरी प्रोसेस में क्या होता है? यहां पर देयर इज नो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज. यहां पर द होल प्रोसीजर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज. ठीक है? यहां पर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराना वो ज्यादा हमारे लिए वो हमारा पूरे प्रोसीजर का फोकस रहता है. जैसे कि कॉन्सिलिएशन में पार्टीज को एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन को हम लोग लेकर के आते हैं वहां पर. सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या होता है? नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस, एंड देयर इज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट साइंड एट द एंड, चाहे वो मीडिएशन हो, कॉन्सिलिएशन हो, या फिर जुडिशियल सेटलमेंट हो. ठीक है? सो फर्स्ट डिस्टिंक्शन दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि आर्बिट्रेशन इज द ओनली एडजुडिकेटरी प्रोसेस. रेस्ट ऑफ द अदर वंस जो भी हमारे ये सारे क्या होता है? नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस होते हैं. ठीक है? नाउ द अदर डिस्टिंक्शन, अब यही हम लोग दोबारा से बनाएंगे एडीआर का. देखो, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, एंड लास्टली वी हैव जुडिशियल सेटलमेंट. ठीक है? देखो, याद रखना कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, दे कैन हैपन only with the consent of the parties. ठीक है? Only with the consent of the parties. But mediation या लोक अदालत, यहां पर याद रखना, यहां पर consent is not necessary but desirable. So consent is not necessary
but desirable. So एक बात याद रखना कि although कि all four are ADRs, but there is a difference कि arbitration and conciliation can happen only when there is a consent of both parties. ठीक है, arbitration में consent होना चाहिए तभी arbitration होगा, conciliation में भी consent होना चाहिए दोनों parties का तभी हमारा conciliation होगा. लेकिन मीडिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, यहां पर जरूरी नहीं है कंसेंट, बट कंसेंट इज डिजायरेबल बिकॉज अगर कंसेंट है पार्टीज की, देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टी का कंसेंट ना हो बट फिर भी उन्हें लोक अदालत में भेज दिया जाएगा. जैसे देखो मोटर व्हीकल्स एक्ट के जो चालान वगैरह होते हैं वो सब हम लोग कहां सेटल करते हैं, लोक अदालत वगैरह में सेटल करते हैं. वहां पर लीगल प्रिंसिपल्स पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट होती है अमाउंट ऑफ द चालान पे. तो लीगल प्रिंसिपल्स जहां पर इश्यूज में नहीं है वहां पर हम लोग क्या ट्राई करते हैं, मीडिएशन, और इसीलिए वहां पर कंसेंट उनकी नेसेसरी नहीं होती है हमारे. ठीक है, हाँ, लेकिन आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन दोनों के लिए हमें पार्टीज का कंसेंट चाहिए होगा. नाउ आर्बिट्रेशन में हाउ डू यू सिग्निफाई कंसेंट? ठीक है, वी सिग्निफाई कंसेंट बाय एंटरिंग इनटू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. ठीक है, सो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. ठीक है, तो आर्बिट्रेशन में देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या होता है, द पार्टीज मस्ट सबमिट देयर डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन. ठीक है, सो याद रखना, फॉर एन आर्बिट्रेशन देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. इफ देयर इज नो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट देयर विल बी नो आर्बिट्रेशन. सो द इट इज से कहते हैं ना साइन क्वा नॉन, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट और एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड. बट इन कॉन्सिलिएशन याद रखना, देयर इज नो अग्रीमेंट. What happens is one party sends the invitation in writing and the other party accepts the invitation in writing to conciliate. ठीक है, so यहां पर invitation sent and accepted, sent and accepted. ठीक है, so याद रखना कि arbitration and conciliation में it can happen only with the consent of the parties. arbitration में consent आता है arbitration agreement से, और conciliation में आता है invitation sent and accepted से. ठीक है, चलो अब देखो, टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. ठीक है, देखो, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज आर्बिट्रेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉन्सिलिएशन. ठीक है, सो कॉन्सिलिएशन इज बिटवीन सेक्शन 61 to 81, and then we have arbitration. This is from section 2 to section 60. ठीक है, but then arbitration is again divided into two parts. One is domestic arbitration, and the other one is foreign awards or international, the foreign awards. ठीक है, so domestic arbitration जो है, this is from section 2 to 43, and the foreign awards, this is, इसको हम लोग एक्चुअली दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं. दिस इज बिटवीन द न्यूयॉर्क अवार्ड्स एंड द जिनीवा अवार्ड्स. ठीक है, अब इसमें भी न्यूयॉर्क अवार्ड्स जो है ये है हमारे सेक्शन 44 से लेकर के एंड 50 तक. ठीक है, एंड जिनीवा है ये हमारा है सेक्शन 51 से लेकर के 59 तक. ठीक है, एंड देन वी हैव सॉरी 60, नॉट 59, 60, 51 to 60, and then we have conciliation from 61 to 81. ठीक है, so याद रखना, this is the scheme of the overall act, arbitration and conciliation. But by the Mediation Act of 2023, which was passed in September of 2023, this part of conciliation has been repealed by the Mediation Act of 2023. Okay, this has been repealed. एंड एक्चुअली जो जजमेंट है, सॉरी जो स्टैट्यूट है मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023, वो बोलता है कि एनी रेफरेंस मेड टू कॉन्सिलिएशन विल बी रेफर्ड एज टू मीडिएशन. तो जहां जहां भी कॉन्सिलिएशन आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा, मीडिएशन आ जाएगा. ठीक है, सो बाय द 6th शेड्यूल इन द मीडिएशन एक्ट, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट टाइम. बट याद रखना कि अब हम लोगों को मेनली हम लोगों को आर्बिट्रेशन पढ़ना होता है. फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्बिट्रेशन, और उसमें भी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉरेन अवार्ड से भी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं,
अनलेस कि वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से रिलेट ना कर रहे हो, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में हम लोग को ध्यान देना होता है कहां पर, सेक्शन 243। फॉरेन अवार्ड से क्वेश्चंस नहीं आते बिकॉज कई सारे प्रोविजंस जो कि डोमेस्टिक अवार्ड से, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, वो सारे यहां पर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। एंड कई बार तो वर्बैटिम है, कई बार नेसेसरी चेंजेस के बाद है वहां पर, बट ओवरऑल दे आर ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर प्रोविजंस, ठीक है। सो हम लोगों को फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे, ठीक है। राइट, अब देखो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को भी पढ़ने के हमारे कई सारे तरीके हैं। वन विच इज वी कैन गो सेक्शन वाइज, ठीक है, विच इज द नॉर्मल थिंग टू डू कि आपने बैरक उठाया और सेक्शन वाइज स्टार्ट कर दिया। बट द अदर थिंग इज कि आपको, बिकॉज देखो आर्बिट्रेशन इसका पर्पज है कि कोर्ट का जो सिविल प्रोसीजर है वो बहुत ही लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करना, दैट इज द होल पर्पज ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। सो वो याद रखना, ऑल्दो इट इज नॉट सेड स्पेसिफिकली, बट याद रखना आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ, सो इट गिव्स अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, माई पर्सनल ओपिनियन इज इट मस्ट ऑल्सो बी स्टडीड बाई अरेंजिंग द होल ऑफ द एक्ट इन अ सीक्वेंस, ठीक है। और वो जो सीक्वेंस जिस पर कि हम लोगों को पूरा आर्बिट्रेशन पढ़ना चाहिए, इट एक्चुअली हैज अ टाइमलाइन, ठीक है। वो जो सीक्वेंस है या फिर जो टाइमलाइन है वो मैं दिखाता हूं यहां पर, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो फर्स्ट देयर इज अ डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट अराइजेस, ठीक है। आफ्टर दैट द पार्टीज एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। ऑल्दो दीज टू स्टेप्स में ऑल्सो बी फ्लिप्ड, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज ने पहले ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि इन केस अ डिस्प्यूट अराइजेस देन वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन, बट ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्यूट अराइज होने के बाद दे एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स जो हम लोग फ्लिप भी कर सकते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। आफ्टर दिस व्हेन द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यहां पर क्या होगा, हम लोग जाते हैं कोर्ट के पास एंड द कोर्ट मेक्स अ रेफरेंस फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है। बट कोर्ट का रेफरेंस नेसेसरी नहीं होता, पार्टीज कैन आल्सो स्टार्ट आर्बिट्रेशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ द कोर्ट, वो भी यहां पर ही प्रोवाइडेड है। अब जब कोर्ट ने अपना रेफरेंस दे दिया है, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट द पार्टीज डू, दे गो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ठीक है। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए काफी सारे प्रोविजन जो है हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर के बाद व्हेन द अपॉइंटमेंट इज डन, देन द हमारा क्या होता है, द प्रोसीडिंग्स कमेंस, ठीक है। सो द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट और कमेंस, राइट। अब इसके बाद प्रोसीडिंग्स कमेंस होने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, अब मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला स्टेप हमारा होता है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा होगा पहला स्टेप, द इनिशिएटिंग पार्टी सबमिट्स अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम along with other supporting documents, ठीक है। तो ये हो गया, इनिशिएटिंग पार्टी ने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम किया। अब मैं वही टाइमलाइन कंटिन्यू कर रहा हूं जो कि लास्ट लेक्चर, जो लास्ट स्लाइड पे था वही वाली है। अब ऑपोजिट पार्टी जो है वो सबमिट करती है अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। सो सेकंड हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब दोनों पार्टीज ने, मतलब एक पार्टी जो इनिशिएटिंग पार्टी थी उसने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में भी इसके साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकता है, और साथ में यहां पर सेट ऑफ काउंटर क्लेम भी करता है, वो सेक्शन 23 में दिया हुआ है वो सब चीज। एंड देन द हियरिंग स्टार्ट्स, ठीक है। So the arbitrator is going to conduct hearings. It can call witnesses. It can also examine the witnesses. It can also examine the document, examine the parties. वो सारी चीजें जो है हमारी hearing में आती है, ठीक है। और इसी में arbitrator जो है वो expert को भी appoint कर सकता है, who reports to the arbitral tribunal on a specific issue. ये सारी चीजें वो करता है। And then at the end of the hearing, अब मैं यहां पर ऑल्दो कि मैंने एक स्टेप लिया है, but hearing can be conducted in phases. कई बार hearing हो सकती है। And at the end there is an arbitral award passed, ठीक है, which is the culmination of the proceedings. जो termination of proceedings होती है सेक्शन 31, 32 में दिया हुआ है कैसे होते हैं। Now arbitral award पास होने के बाद याद रखना कि हम लोगों को ऑल्दो लगता है कि यहां पर खत्म हो गया, बट एक्चुअली ये खत्म नहीं होता, बिकॉज
अवार्ड पास होने के बाद देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल. वन पार्टी, यूजुअली द लूजिंग पार्टी, wants the award to be set aside. ठीक है. So setting aside of award is one venue, aside of award, but the other thing that can happen is enforcement. ठीक है. अवार्ड को इन्फोर्स भी करा सकते हो या फिर आप सेटिंग असाइड भी करा सकते हो. तो जनरली क्या होता है, द विनिंग पार्टी गोज फॉर इन्फोर्समेंट एंड द लूजिंग पार्टी गोज फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द अवार्ड. ठीक है. सो देखो, ये हो गया हमारा पूरा वो टाइमलाइन जिससे कि हम लोग एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को हम लोग समझ सकते हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंटायर थिंग, दिस इज अ वेरी बेसिक टाइमलाइन, बट दिस टाइमलाइन इज नेसेसरी टू गिव अ डायरेक्शन टू द आर्बिट्रेशन एक्ट. ठीक है. अब देखो यहां पर क्या होगा, सेक्शन वाइज अगर हम लोग अरेंज करें, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दिस इज अंडर सेक्शन 8, तो सेक्शन 7. तो सेक्शन 21B, 21A, 21B वहां पर से लेकर के हम लोग देन सेक्शन 7 में आते हैं 21B से. अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, बोथ पार्टीज मस्ट अग्री दैट वी सबमिट फॉर आर्बिट्रेशन. ठीक है. ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स करना चाहिए, वेदर अराइजिंग फ्रॉम अ लीगल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डजंट मैटर. ठीक है. और इट मस्ट बी इन राइटिंग. ठीक है. इट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, इट मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट. अगर लेटर सेंट है या रिसीव्ड है उस पर आप करना चाह रहे हो. अगर मान लो ईमेल भी है, आपने ईमेल सेंड की है ऑफरिंग आर्बिट्रेशन की लेट्स गो फॉर आर्बिट्रेशन, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स कि ईमेल पर ही कि लेट्स गो फॉर आर्बिट्रेशन, दैट इज आल्सो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 7 में. ठीक है. तो देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. नेक्स्ट, कोर्ट का रेफरेंस, दिस इज अंडर सेक्शन 8. सो व्हेन द पार्टी, सपोज कि दो में से कोई एक पार्टी, ऑल्दो कि इनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, बट द अदर पार्टी गोज एंड फाइल्स अ सूट. उस सूट में जब तक डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल नहीं किया है, उसके पहले डिफेंडेंट जो है वो अपीयर होकर बोल सकता है कि वी ऑलरेडी हैव एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सो डोंट proceed further in this suit and please refer us to arbitration. तो वही है हमारा कोर्ट refers the parties to arbitration. So वहां पर याद रखना बिफोर द सबमिशन ऑफ द डिफेंस, उसके पहले आपको करना पड़ता है. बट इवन दैट कोर्ट ने, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है और अगर एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, वो वहां पर भी इवन यू कैन, सेक्शन 8 का ही सबसेक्शन 3 बोलता है, नॉट विथस्टैंडिंग दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन पेंडिंग इन सबसेक्शन 1, एन आर्बिट्रेशन में बी कमेंस्ड और कंटिन्यूड एंड इवन एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी पास्ड. ठीक है. सो दैट इज ऑल अंडर सेक्शन 8. ठीक है. अब देखो यहां पर जब कोर्ट का रेफरेंस हो गया, अब पहला काम पार्टी क्या करती है, दे स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. ठीक है. अब ये हमारा होता है सेक्शंस 11 से लेकर के 16 तक. ठीक है. ऑल्दो इसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है. 11 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ही कैन बी सेक्शन, वेल एक्चुअली ये सेक्शन 10 से 16 होगा. 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो है वो सेक्शन 10 में दिया हुआ. सेक्शन 9 इज इंटरिम मेजर्स. ठीक है. कई बार आपको इंटरिम मेजर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट के आगे, तो वहां पर आप कोर्ट के सामने अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. और 10 to 16 में सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर नहीं है, यहां पर वो ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं कि आर्बिट्रेटर को क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है. जैसे उसे बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट बायस्ड, पहला, और दूसरा आई विल बी एबल टू फिनिश द आर्बिट्रेशन विद इन 12 months. ठीक है. ये सारी चीजें वो कहां बताता है, यहां पर. और इसके साथ ही अगर किसी पार्टी को पता चलता है कि ये आर्बिट्रेटर जो है वो किसी पार्टी से रिलेटेड है या फिर उसका उस पार्टी से पहले ट्रांजैक्शन रह चुका है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ भी, तो वो चीजें सब रिमूवल के ग्राउंड वगैरह भी वो यहीं पर दिए हुए हैं. एंड देन वी हैव सेक्शन 14, 15, 16, वो चैलेंज प्रोसीजर जो है 13 में दिया हुआ है, 14 में एडिशनल ग्राउंड्स दिए हुए हैं, फिर 15 में और एडिशनल ग्राउंड्स दिए हुए हैं, 16 में अगर आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के जुडिशन को चैलेंज करना चाहते हो तो वो सारा कुछ भी कहां पर है, 10 to 16 में है. तो ये कहने के लिए एक स्टेप है, बट एक्चुअली यहां पर हमारे काफी सारे सेक्शंस आ जाते हैं. ठीक है. अब प्रोसीडिंग्स जो है ये हमारी कमेंट्स होती हैं, तो ये हमारे एक्चुअली कमेंट्स होती हैं सेक्शन 21 से. ठीक है. लेकिन इसके बीच में जो हम लोग को दिख रहा है कुछ सेक्शंस यहां पर मिसिंग है. 17 इज अगेन इंटरिम मेजर्स, लेकिन ये इंटरिम मेजर्स है बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. और जो 9 में हम लोग को मिलता है, इसे देखो यहां पर, इसके ऊपर यहां पर सेक्शन 9 आएगा, इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट. ठीक है. और यहां पर कहीं बीच में सेक्शन 17 आता है, इंटरिम मेजर्स बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. ठीक है. तो दोनों ही इंटरिम मेजर्स हैं, बट एक बाय कोर्ट मिलता है और एक बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. अब उसके डिटेल्स तो मैं अभी नहीं जा सकता, बिकॉज दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. प्रोसीडिंग्स हमारी कमेंट्स होती हैं, उसके पहले आपको
ये डिसाइड करना पड़ता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा. इट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी, इट इज नॉट बाउंड बाय एविडेंस. ये चीज है सेक्शन 19 में हमारे. देन 20 बताता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन. नाउ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड करना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन से ही पता चलता है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन सी कोर्ट, कौन से लैंड का लॉ अप्लाई होगा और कौन सी कोर्ट का जुडिक्शन होगा इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट. ठीक है, कि अगर इंटरिम मेजर आपको फाइल करना है कोर्ट में तो कौन सी कोर्ट में फाइल करोगे, ये सब डिसाइड होता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन. तो वो जो सेक्शंस हैं वो हम लोग बीच में ही करते हैं, 16 to 21 के बीच में कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, एंड देन 21 के बाद हमारा 22 इज लैंग्वेज एंड 23 जो है वो हमारा स्टार्ट होता है. ये दोनों सेक्शंस जो है, ये दोनों स्टेप्स, both of these are in section 23 and then the hearing is under section 24 25. ठीक है, and then we also include 27 because appointment of expert भी hearing के टाइम पे ही हो जाता है, right? And then we have the arbitral award under section 29A and 31. ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है आर्बिट्रल अवार्ड को पास करने की, वो 29A में है. देन 31 इज कंटेंट्स एंड फॉर्म ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड की क्या क्या होना चाहिए, रीजनिंग देनी है नहीं देनी है. ठीक है, कॉपीज ऑफ द साइंड आर्बिट्रल अवार्ड पार्टीज को देना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग 31 में पढ़ते हैं. एंड देन उसके बाद है हमारा सेटिंग असाइड ऑफ द अवार्ड. दिस इज अंडर सेक्शन 34 एंड देन द एनफोर्समेंट इज अंडर सेक्शन 35 एंड 36. ठीक है, यहां पर भी कुछ सेक्शंस हम लोगों ने स्किप किए हैं, मतलब अभी के लिए टाइमलाइन में मैंने स्किप किए हैं, बट एक्चुअली जब हम लोग करते हैं 32 इज टर्मिनेशन, 33 इज करेक्शन और एनी अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल एरर हो गया है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड की जरूरत है, तो वहां पर भी आर्बिट्रल अवार्ड के बाद भी हम लोग वो सारे प्रोविजंस वहां पढ़ते हैं. ठीक है, 34 इज सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, कि अगर कोई ग्राउंड है, सपोज कि आर्बिट्रल अवार्ड वाज इनवैलिड या फिर पार्टी वाज अंडर सम काइंड ऑफ इनकैपेसिटी या फिर नोटिस सर्व नहीं हुआ था. ठीक है, या फिर आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो ऐसे ग्राउंड पर है जिस पर कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन ही नहीं था, तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, तो वो सारे ग्राउंड्स में हम लोग सेटिंग असाइड करते हैं. एंड देन द इन्फोर्समेंट हैपेंस, अगर सेटिंग असाइड नहीं हुई है देन हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स कर देते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विथ सेक्शंस 37 to 43. ठीक है, दीज आर द रेजिड्यूरी प्रोविजंस. ठीक है, जो कि जनरल हैं, जो मिसलेनियस प्रोविजंस आते हैं. जैसे सेक्शन 43 कहता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट पे लिमिटेशन वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि ये लिमिटेशन एक्ट का पार्ट था. तो लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 दैट अप्लाइज अपॉन द आर्बिट्रेशन एक्ट. तो अगर कोई डिस्प्यूट है और उस पर लिमिटेशन एक्ट में आपको 3 years का टाइम दिया हुआ है सूट फाइल करने के लिए, तो वो डिस्प्यूट जो है उसमें आर्बिट्रेशन भी आप 3 years के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हो. अगर 3 years की बात करोगे दैट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन. ठीक है, तो वो सारी चीजें 43 में है. और सेक्शन 40 39, जैसे अगर मान लो कि राइट टू लियन है 39 में, राइट टू अगर 40 है एलआर्स के, कि अगर मान लो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया बट द पार्टी डाइज, तो उसके एलआर्स क्या वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बाउंड है या नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 40 में. एंड देन देयर आर अदर रेजिड्यूरी प्रोविजंस, राइट टू लियन वगैरह जो है वहां पर हमारा. ठीक है, सो देखो these are all the provisions of arbitration act. ठीक है, अब देखो जो मेरा पॉइंट था यहां पर कि देखो if we study the arbitration act according to this sequence or this timeline it will make much more sense. ठीक है, it's not like कि हम लोग यहां कुछ different पढ़ते हैं, नहीं, provisions तो वही रहेंगे लेकिन हम लोग यहां पर उसे different तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि because it is basically a procedural law और procedural law को आपको हमेशा ही step by step पढ़ना चाहिए. पहले dispute arise होगा, फिर arbitration agreement. देखो हम लोग क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले arbitral award पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन होगा तभी फ्यूचर में एक आर्बिट्रल अवार्ड आएगा. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे आर्बिट्रेशन को अरेंज कर देते हैं ऑन अ टाइमलाइन सो दैट इट मेक्स सेंस. ठीक है, बट आई एम सेइंग वन थिंग अगेन, ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहे. हो सकता हो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले साइन हुआ हो और डिस्प्यूट आपका बाद में अराइज हो रहा हो. तो प्रेजेंट डिस्प्यूट हो या फ्यूचर डिस्प्यूट हो, दोनों के लिए यही टाइमलाइन चलती है. ओनली द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर फ्लिप्ड, बाकी सारा जो प्रोविजन है दैट इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. एंड बिकॉज कॉन्सिलिएशन हैज बीन रिपील्ड नाउ, सो देयर इज अ presumption कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. वेल यस, जनरली दैट इज द केस, बट यू नेवर नो बिकॉज पेंडिंग केसेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी चल रहे हैं उनके लिए तो वही प्रोविजंस है 61 to 81. तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो एग्जाम में. ठीक है, बट दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं, विच इज द just to give you an overview of the Arbitration and Conciliation Act of 1996. Thank you everyone. Subscribe for more content.